Hello everyone, welcome to Mans Chandigarh IAS Academy. Let's start with 61st question of historical background. 61st. Who rules? Okay, ये question यहाँ से start है. It is a form of government in which the ultimate leader is a supreme deity or a group of who rules either directly as a god in human form or indirectly through earthly servants, typically the clergy, who rule in the deity's stead. The laws are based on religious laws and precepts, and the government serve its deity rather than their citizenry. They may be often oppressive in functions with strict rules and harsh punishments for rule breakers. Which of the following type of political system is being described with the passage given above? ये किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है हमें ये बताना है जहां पे डाइटी के बेसिस पे रूल किया जाता है. Who rule in the deity's stead? क्या वो ओलिगार्की है, मेरिटोक्रेसी है, थियोक्रेसी है या एरिस्टोक्रेसी है? What do you think? So, थियोक्रेसी is the correct one. जहां की पॉलिसीज गाइडेड होती हैं, ये माना जाता है कि ये गॉड, डिवाइन, ये सब चीजें हमें गाइड कर रही है, आगे लेके जा रही है. Who rule in the deity's stead? अगर हम ओलिगार्की की बात करते हैं, ओलिगार्की मीन्स इट इज रूल्ड बाय फ्यू पीपल विच इज डिस्टिंग्विश्ड बाय रॉयलिटी, वेल्थ, फैमिली एटसेट्रा. और मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, इफ वी टॉक इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस, the roles, responsibilities and power, they all are based on merits. Okay. Aristocracy, रूल बाय एलिट्स वन, जो एलिट है वो लोग रूल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Consider the following statements concerning the Constituent Assembly in India. The Constituent Assembly established 7 committees to draft constitution. Congress Party officially demanded a Constituent Assembly in 1929 Lahore session. The British accepted in principle the demand of a Constituent Assembly in Cabinet Mission Plan. आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तीनों करेक्ट है, क्या लगता है? ऑप्शंस पे नहीं जाते, ट्राई टू सॉल्व लाइक दिस. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 7 कमिटीज नहीं थी, वहां पे 13 कमिटीज थी. फैक्चुअल बेसिक डाटा 13. कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली डिमांडेड, ये हमने क्वेश्चन पहले वाली सीरीज में कवर किया है. 1929 में लाहौर सेशन में नहीं किया था, 1935 में किया था. और ब्रिटिश ने सबसे पहले अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी. दिस इज नॉट कैबिनेट मिशंस प्लान, ओके, इट वाज अगस्त ऑफर. 1914. Yeah, this is none. Okay. The objective of the Government of India Act 1915 was to, क्या लगता है Government of India Act 1915 इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा? Increase the number of non-official members in the Central Legislative Assembly. It laid the foundation of a representative and popular government in India, or consolidate all the preceding acts of Parliament concerning British India, or consolidate all the ordinances passed by the Governor General of India related to national security. It established a 15-member council. ये next question है, I think. Yes, this is question number 64. यहाँ से 64 start है. Okay, this is objective. ये एक first statement है, second statement है और third statement and fourth statement.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, इनका सिंपल सा ये था, जितने भी प्रीवियस लॉज हैं उनको कंसोलिडेट करना है, दैट्स इट. दिस इज द सी स्टेटमेंट, कंसोलिडेट ऑल द प्रीसीडिंग एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट. पहले के जितने भी एक्ट्स हैं उन्हें कंसोलिडेट करना है कंसर्निंग ब्रिटिश इंडिया. इसका सिर्फ इतनी सी बात थी. ओके, क्वेश्चंस की नंबरिंग ऊपर नीचे है, डोंट माइंड व्हाट इज हैपनिंग. यहां से रीड कर लेते हैं. हमें ये क्वेश्चन यहां से शुरू है. It established a 15-member Council of India to assist the Secretary of State of India. The Court of Directors and the Board of Control of the East India Company were scrapped. The act made India a direct British colony. Which of the following act is being described by the above passage? A Government of India Act of 1858, Indian Council Act of 1861, Indian Council Act of 1892 और Indian Council Act of 1909. ऐसा कौन सा एक्ट था जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको स्क्रैप कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई? ये हम सबको पता है, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे हम गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया. ये देखो, यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी है और उसका चेयरमैन पूछा है. ये कर चुके क्वेश्चन. स्टीयरिंग कमेटी का कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट वी हैव हाउस कमेटी. हाउस कमेटी पटाभी सीता रमैया. सो दिस इज रॉन्ग कि फर्स्ट का हमें यहाँ पे बी पटाभी सीता रमैया दिया है, तो दिस इज फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकेंड हाउस कमेटी, हमें ये पता है पटाभी सीता रमैया है, बट इसके सामने क्या दिया है? राजेंद्र प्रसाद. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग. स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाउस कमेटी पटाभी सीता रमैया, देन वी हैव स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू. ओके, राइट डाउन दीज थिंग्स. अब हमसे पूछा है बेनिफिट्स बताओ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन इंडिया आफ्टर अडॉप्टिंग. अगर हम कर लेते तो, अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें क्या है? हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेम पर्सन है. उसके अंदर ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, उसका खुद का कैबिनेट होता है, और वी कैन से दैट किचन कैबिनेट बाहर से भी वो लोगों को अपॉइंट करता है, नॉट फ्रॉम पर्टिकुलरली द लेजिस्लेचर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि उसके बेनिफिट पूछे प्रेसिडेंशियल फॉर्म के, तो स्टेबल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं. इलेक्टोरल कोलाज से इलेक्ट होके आता है, सिंगल पर्सन रहता है. प्रिवेंट ऑटोक्रेसी, ये इसके डीमेरिट्स है. ऑटोक्रेसी अभी हमने बात की. ऑटोक्रेसी मींस रूल बाय एलीट पीपल, एलीट क्लास. सो यहाँ पे ऑटोक्रेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम. नेक्स्ट वी हैव नैरो रिप्रेजेंटेशन, ये भी डीमेरिट है किसका? प्रेसिडेंशियल सिस्टम का. आई होप दिस इज क्लियर. Consider the following statements regarding the Constituent Assembly. Dr. Sachindanand Sinha was elected as a provincial president of the Constituent Assembly. V.T. Krishnamacharya was the only vice president of the Constituent Assembly. Muslim League was never a part of Constituent Assembly. Factual part है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा सबसे पहले प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने थे. उसके बाद कौन बना था प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो प्रेसिडेंट बने थे बेसिकली. वी.टी. कृष्णमाचार्य सिर्फ वही थे? नहीं, साथ में उनके कौन थे वाइस प्रेसिडेंट?
H.C. Mukherjee. Pardon for my handwriting. Muslim League was never a part of Constituent Assembly. This was wrong. ये स्टेटमेंट हम बहुत बार करके आ चुके हैं. बेटी कृष्णमाचारी, ये स्टेटमेंट भी गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट. सो इसका क्या आएगा? डी. 67. In the context of the Indian polity, which of the following statement best describes the term fraternity? Fraternity, ये जो वर्ड है ना, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डालने के लिए. उसमें डाला गया और हमने प्रीएम्बल में भी इसे अडॉप्ट किया है फ्रेटर्निटी को. फ्रेटर्निटी बेसिकली मीन्स ब्रदरहुड, अ सेंस ऑफ कॉमननेस. ओके, ताकि लोग साथ में मिलजुल कर रहें. अब यहाँ पे बेस्ट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको? It refers to the formation of collective consciousness leading to unity and integrity of the nation. यहाँ पे हमसे best describe पूछा है. okay? It refers to the voluntary sharing of collective burdens by individual for the welfare of the society. It refers to an attitude of respect and reverence towards fellow men. It refers to the assurance of mutual tolerance towards all religion. यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की टॉलरेंस और इन सब चीजों के लिए बात नहीं कही गई थी. इट इज बेसिकली टुवर्ड्स अ एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट. These terms are important. Attitude of respect, reverence towards fellow men. This statement is correct. यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड भी हमें कहीं ना कहीं सही लगती है, बट दे आस्क फॉर द बेस्ट स्टेटमेंट. सो एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका बन जाता है फ्रेटर्निटी का. नेक्स्ट वी हैव which of the following may be considered as the function of the constitution? Functions of a constitution. It provides minimal basic rules that allow coordination among the members of society. Absolutely correct. It limits the power of the government. We have covered this thing as well. It expresses the aspiration of the people. बिल्कुल सही बात है. Aspiration of the people भी constitution में reflect होता है. ये उसका function है. So all three are correct. Which of the following statement is or are correct with reference to the preamble of the Constitution? यहाँ पर हमसे preamble का पूछा है. Preamble. It acted as the guide to the Constituent Assembly in drafting the Constitution of India. Can you think कि ये act कर रहा था for Constituent Assembly to prepare Constitution? पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने उसको लास्ट में ऐड किया था प्रीएम्बल को. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इट रिवील्स द सोर्स फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी. एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी अथॉरिटी कहां से ड्राइव की है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस इट्स एडॉप्शन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट फॉर द सेकेंड अमेंडमेंट. सो 2 and 3 आर करेक्ट. First statement is wrong. यहाँ पे 2 and 3 आएगा. Last question for the day. Which of the following article or articles of the Indian Constitution has been called the very soul of the Indian Constitution and very heart of it by the Dr. B.R. Ambedkar? ये आप सबको पता होगा. कौन से आर्टिकल को बोला गया था? इट वॉज आर्टिकल 32. रिट्स की बात की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है रिट्स, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस. अब ये सब चीजें क्यों जरूरी थी? देखो, फंडामेंटल राइट्स आ गया, लोग अपने राइट्स से अवेयर हो गए, लेकिन अगर उनके राइट्स इन्फ्रिंज हो जाए तो वो कहाँ जाए? दिस इज इम्पॉर्टेंट. वो अपने राइट्स को वापस लेने के लिए और उनके अगेंस्ट बोलने के लिए कि हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, ये चीज आगे कहाँ रख सकते थे? वो थ्रू आर्टिकल 32. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. This is it for today. Have a good day. Nice day. Thank you.